Good morning, students. Today I am going to teach you second chapter, that is types of software. Okay, types of software. That means in this chapter we will learn the more about software. As you know, our computer system is made of the combination of software as well as hardware. So in this chapter we will discuss more about the software, but some overview is given about the hardware. So at first we will discuss that a computer, it is made of two parts. One is hardware and another one is software. So what is the hardware? You know, the physical parts, the hard parts that you can touch, you can see, you can feel, you can measure, those having weight, those occupies the place, that is called the hardware parts. And software parts, that is the group of instructions, set of instruction that we cannot touch, that we cannot see, that is known as the software. And that is important for the hardware devices. Without lack of any device, either hardware or software, we cannot operate our computer system. So in this chapter we will discuss more about software. First we see hardware. Okay, what is the hardware? All the physical parts which you can see, feel and touch are called hardware of the computer. These devices are known as peripheral devices. CPU, keyboard, monitor, mouse, modem, CD-ROM, etc. are all example of hardware devices. That means the device that having place, that having weight, that occupies the space, it is known as the hardware devices. So in having some types of devices in hardware part, first you see input and output devices, because there are three types of devices: input, output and processing devices. So here we will see input and output devices. You first see input devices. Okay, drawing or graphic tablet. Tablet means just like a mobile phone, tab, and that tab will be used for writing something, for drawing something. It is just like a whiteboard, no? इसे जिस तरह से हम लोग का स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इट इज सेम लाइक दैट. एंड टू राइट ऑन दैट वन देयर इज अ pen, it's called a stylus, through which we can write whatever we want on the monitor of drawing or graphic tablet. You see here, a drawing tablet is similar to a whiteboard, except that you use a special pen called stylus to write on it. A drawing tablet is connected to the computer by moving the stylus on the tablet. You can draw on the screen of the monitor and save it on the computer. एक डिवाइस है जिसको हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके और उसमें हम लोग जो भी लिखना चाहते हैं वो हम लोग उसमें लिख सकते हैं, और फिर उसको हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करके कंप्यूटर में उसको हम लोग सेव कर सकते हैं ईजी वे में. ठीक. देन यू नेक्स्ट सी जॉयस्टिक. जॉयस्टिक क्या होता है कि जॉयस्टिक इज इनपुट डिवाइसेस which is used to place the cursor, move the cursor. जिस तरह से हम लोग माउस से कर्सर को मूव करते हैं, सेम एज वी विल मूव द कर्सर फॉर प्लेइंग गेम एंड डूइंग समथिंग एल्स, एंड स्पेशली इट इज़ यूज्ड फॉर द प्लेइंग गेम, क्योंकि उसमें हम लोग को माउस ज़्यादा मूव करना पड़ता है. तो जॉयस्टिक को हम लोग प्लेइंग गेम में ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं. ओके. See here, a joystick is used to move the cursor and select different items on the computer screen. It is a control device that consists of a handheld stick which pivots around one end
इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम। ये क्या होता है कि डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, माउस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और एंड इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग द गेम्स। ओके, नाउ यू सी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है कि टच स्क्रीन जैसे आप लोग भी देखे होंगे मोबाइल में लगा हुआ रहता है, सिस्टम में लगा रहता है, इवन इट इज़ यूज इन ATM मशीन। तो टच स्क्रीन क्या है कि टच स्क्रीन इज द स्क्रीन where you can do the things by touching its screen. Okay, and you see here a touch screen is a computer screen that you can touch with your finger to enter information. You must have seen touch screen on a smart board, microwave or an ATM machine। जिस तरह से हम लोग स्मार्ट क्लास में यूज करते हैं बाय द टच स्क्रीन, हम लोग टच करते हैं और हम लोग जो भी ऑपरेशन करना होता है हम लोग उसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सो दैट इज अ टच स्क्रीन। नेक्स्ट इज द बार कोड स्कैनर। बार कोड स्कैनर क्या करता है कि दिस इज अ स्कैनर, ओके, हु स्कैन द बार कोड दैट इज प्रिंटेड ऑन द आइटम्स। कोई भी आइटम्स हम लोग परचेज करते हैं तो उसमें बार कोड दिया हुआ रहता है, तो उसको स्कैन करने के लिए हम लोग बार कोड एक स्कैनर का यूज करते हैं। बार कोड स्कैनर स्कैन्स अ लिटिल लेबल दैट हैज अ बार कोड ऑन इट। द इंफॉर्मेशन इज देन सेव्ड डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर। बार कोड स्कैनर आर यूज्ड इन लाइब्रेरीज टू स्कैन द बार कोड ऑन द बैक ऑफ बुक। You would also have seen salespeople scanning the barcodes from the label of clothes and groceries at the time of billing। तो बारकोड में क्या रहता है कि आइटम्स का जो डिटेल्स रहता है उस बारकोड में गिवन रहता है, तो उसका डिटेल्स को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बारकोड स्कैनर से स्कैन करके सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कंप्यूटर में रिसीव होता है, हम लोगों को वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट वी सी वेब कैम। वेब कैम इट्स अ वेब कैमरा जो हम लोगों का कंप्यूटर में या फिर हम लोगों का जो मोबाइल में जो सेल्फी कैमरा रहता है ना, दैट इज़ कॉल्ड द वेब कैमरा। क्योंकि जस्ट सपोज अगर आप लोग वीडियो कॉलिंग करेंगे या ऑडियो कॉलिंग ही करेंगे थ्रू द कंप्यूटर, देन यू मस्ट नीड टू यूज द वेब कैमरा। ये क्या कहता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है, वीडियो लाइव चैट करना है किसी से भी, तो बोथ पर्सन नीड टू यूज द वेब कैमरा। इसी वेब कैमरा इज अ लो रेजोल्यूशन वीडियो कैमरा विच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड अ विजुअल इनपुट। इट इज़ यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहता है, वेब कैमरा इज अ लो रेजोल्यूशन वीडियो कैमरा। इसका जो रिजोल्यूशन होता है बहुत लो होता है, बट इट्स गिव द स्मार्ट पिक्चर। ओके, नाउ यू सी द आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वी हैव सीन द डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन गिव द इनपुट टू आवर कंप्यूटर, दैट इज द इनपुट डिवाइसेस। नाउ वी विल सी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या आता है कि थ्रू विच वी कैन गेट द आउटपुट, जिससे हम लोगों को कुछ रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, दैट इज द आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट वी विल सी मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है कि कंप्यूटर का वो स्क्रीन जहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट प्राप्त होता है। वॉट एवर यू विल डू इन द कंप्यूटर यू विल सी ऑन द मॉनिटर, दैट इज द आउटपुट डिवाइसेस। अब मॉनिटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU is the screen on which word, number and graphics can be seen. Monitor may be differentiated on the basis of color and their capability to display quality graphics. Monitor are also characterized by the flatness of the screen. For example, TFT screen are commonly used nowadays। क्या कहता है कि मॉनिटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक ऐसा आउटपुट डिवाइसेस है दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज विदाउट मॉनिटर वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर नो, बिकॉज वॉट एवर यू विल डू द ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर ओवर द कंप्यूटर you must need to see it. So where will you see it? On the monitor. So monitor is the very necessary devices. Next you see printer. प्रिंटर क्या करता है कि जो भी हम लोग कंप्यूटर में ऑपरेशन करते हैं या जो इमेज बनाए या ड्राइंग की है तो उसको अगर मुझे पेपर में लेना है,
So then we will use printer. Through the printer, it gives a hard copy on the paper. Okay, so you see, a printer is an output devices that create a hard copy of an electronic document onto the paper. Printer can print word, numbers, or pictures. There are different type of printers. Commonly used printer are inkjet printer and laser printer. Printers differ in terms of technology, speed, cost and quality of the printing. क्या कहता है कि प्रिंटर एक ऐसा डिवाइसेस है जो मुझे हार्ड कॉपी देता है, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर में जो सॉफ्ट कॉपी है, जो भी वर्ड्स है, जो भी लेटर्स है, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, वी कैन टेक इट ऑन द पेपर थ्रू द प्रिंटर। क्या कहता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, दैट मीन्स सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट, ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, स्पीड। दैट मीन्स कि अगर बहुत टाइप का प्रिंटर है जिसका स्पीड कुछ ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का फास्ट है, किसी का लो है, अकॉर्डिंग टू देन डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट, कि किसी का जो अच्छा क्वालिटी रहेगा उसका अच्छा कॉस्ट रहेगा। ओके, सी द नेक्स्ट पेज। स्पीकर, नेक्स्ट टर्म इज स्पीकर। Okay, next you see a speaker. A speaker give you audio output from your computer. Some speakers are present inside the computer and some are attached externally. क्या है कि स्पीकर क्या है कि वो that gives you audio output, sound output. Okay, the speaker will increase the sound of your computer. जैसे कि हम लोग स्पीकर जो यूज करते हैं, जो बूफर यूज करते हैं, बॉक्स वगैरह, तो उससे क्या हम लोग को रिसीव होता है, यू विल गेट हाई साउंड, यू विल गेट हाई ऑडियो आउटपुट फ्रॉम योर सिस्टम, फ्रॉम योर डिवाइस। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ, सम वन आर अटैच्ड इंटरनली एंड सम वन आर अटैच्ड एक्सटर्नली, यानी कि जो कुछ अंदर लगा रहता है हर सिस्टम में, जो भी सिस्टम है उसमें, जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है तो उससे जो वॉइस निकलता है, जो वॉइस हम लोग को रिसीव होता है, मोबाइल हो या कंप्यूटर, तो उसमें भी एक इंटरनली स्पीकर लगा हुआ रहता है। और अनदर वन वी विल यूज एक्सटर्नली, दैट मीन्स बाहर से जो हम लोग उसको लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल सी हेडफोन्स। हेडफोन गिव ऑडियो आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। A headphones function is same as that of the speaker, but headphones are worn on the ears, so only one person can hear the output at a time. क्योंकि हेडफोन क्या करता है, वो भी कंप्यूटर से ही आवाज़ बाहर करता है या मोबाइल से ही आवाज़ बाहर निकालता है। ओके, बट इज अ डिफरेंट दैट ओनली वन पर्सन कैन यूज द हेडफोन। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स द साउंड इन ईयर ओनली, नॉट आउटसाइड द ईयर. So those will use the headphone in the ear, they will listen only sound. Okay, today will be till here, and it is given here some test yourself. Some devices are given here, so you must will test it. It is given. Suppose your friend lives in France, you want to send him email and pictures and also want to chat with him. Out of the given hardware devices, choose 5 essential devices that you would like to be part of your computer system. ये एक फ्रेंड से चैट करना है जो फ्रांस में रहता है, तो उससे चैट करने के लिए जो डिवाइसेस मुझे नेसेसरी है, यू विल राइट दैट नेम, गिव द आंसर इन योर नोटबुक इन टेबुलर फॉर्मेट। इस तरह से हम लोग उसको देंगे, डिवाइस बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे और टाइप्स ऑफ डिवाइस बनाएंगे। जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से हम लोग क्या करेंगे, जॉयस्टिक अगर हमको यूज करना है अगर चैट में, तो जॉयस्टिक से क्या काम होगा वो हम लोग लिखेंगे। ओके, टुडे विल बी टिल हियर, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ओनली सॉफ्टवेयर. ओके, thank you, have a great day. And one thing I would like to request you, everyone subscribe the channel. Okay, everyone subscribe my channel so that whenever I will update any type of video, you will get at first. Okay, thank you, have a great day.